ادارہ تعلیم و آگہی اور چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول کی طرف سے آپ سب کے لیے کورونا کے اس مشکل وقت میں ہماری مشہور کہانی لیلا اور منی گڑیا کی مدد سے ہم سیکھیں گے تصاویر کو دیکھ کر کہانی بنانا، نئے الفاظ کو جاننا اور اسم کو پہچاننا۔ پیارے بچوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کہانیاں بہت شوق سے سنتے ہیں، مگر آج ہم کہانی سنیں گے نہیں بلکہ اپنی کہانی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمیں چند تصاویر کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کر ہم کہانی لکھ سکیں، اور یہ رہی ہماری تصاویر جن کو دیکھتے ہوئے ہم کہانی لکھنے جا رہے ہیں۔ بہت خوب، یہ تو بہت ہی خوبصورت تصاویر ہیں۔ آئیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے لیلا اور اس کی گڑیا جس کا نام ہے منی۔ لیلا اور منی گڑیا ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ روزانہ صبح اکٹھے جاگتے ہیں اور اکٹھے ہی ناشتہ کرتے ہیں، اور آج دونوں سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ لیلا نے بازار سے اپنے لیے رنگ برنگی چوڑیاں خریدی۔ لیلا اور منی گڑیا نے مل کر پھل اور سبزیاں بھی خریدی اور ساتھ ہی ساتھ خشک میوہ جات بھی خریدے۔ آج دونوں نے مل کر تانگے کی سواری بھی کی اور پارک کی سیر بھی کی۔ لیلا اور منی گڑیا رکشا کی سواری کرتے ہوئے ساحل سمندر پر پہنچے، جہاں انہوں نے خوب مستی کی۔ شام ہوتے ہی دونوں گھر لوٹ آئے۔ رات کو سونے سے پہلے دونوں نے سارا دن کی خوب باتیں کی اور پھر باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح تصاویر کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہانی بنا لی۔ اب ہم اپنی کہانی میں سے کچھ مشکل اور نئے الفاظ چن کر لکھ لیتے ہیں تاکہ انہیں مزید سرگرمیوں میں استعمال کر سکیں۔ ہمارے مشکل اور نئے الفاظ ہیں منی، روزانہ، ناشتہ، رنگ برنگی، رکشا، پارک، سواری، سمندر۔ بہت خوب بچوں، ہم نے مشکل الفاظ کی فہرست بنا لی ہے۔ اب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ہماری پہلی سرگرمی ہے حروف کی مدد سے الفاظ بنانا۔ آئیے اب سیکھتے ہیں کہ کس طرح حروف کے استعمال سے لفظ بنتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے منی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ منی کن کن حروف سے مل کر بنتا ہے۔ حروف ہیں م، میم، ن، نون، ی، چھوٹی اے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے سیکھ لیا کہ لفظ منی حروف میم، نون اور چھوٹی اے سے مل کر بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میم، نون اور چھوٹی اے کی آوازیں بھی سیکھ لیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ کیا آپ نے یہ حروف مکمل طور پر ذہن نشین کر لیے ہیں کہ نہیں۔ ہماری اگلی سرگرمی ہے خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے لفظ بنانا۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لفظ منی کو بنانے کے لیے ایک حرف دیا گیا ہے۔ اب آپ پچھلی سرگرمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری مدد کریں تاکہ میں ان خالی جگہوں کو پر کر کے لفظ منی مکمل کر سکوں۔ دیا گیا حرف ہے نون۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دو مزید حروف ہیں، میم اور چھوٹی اے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لفظ منی کے حروف کی کیا آواز ہے؟ جی ہاں، بالکل درست، یہ آواز ہے منی۔ چونکہ م
की आवाज मीम से निकलती है, लिहाजा हम मीम को लफ्ज के शुरू में लगाते हैं और छोटी ये आखिर में आएगी। अब हमारा लफ्ज मुकम्मल हो गया, जो कि है मुन्नी। म न यू मुन्नी। शाबाश। उम्मीद है कि आपको ये सरगर्मी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने सीख लिया कि किस तरह हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनते हैं। इसी तरह आप खुद बाकी फहरिस्त में दिए गए मुश्किल अल्फाज के साथ ये सरगर्मी दोहरा सकते हैं। आए अब हम अगली सरगर्मी करें, जिसका नाम है मुश्किल और नए अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। अब हम हमारे मुश्किल और नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। हमारा लफ्ज़ है मुन्नी। आइए अब एक मज़ेदार सा जुमला बनाएं और हमारा जुमला है, लैला की गुड़िया का नाम मुन्नी है। आपने तो बहुत ही खूबसूरत जुमला बना लिया। आइए जुमले को दोहराते हैं। लैला की गुड़िया का नाम मुन्नी है। प्यारे बच्चों, अब तक के सबक में आपने देखा कि किस तरह हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं और फिर इन अल्फाज को आसान जुमलों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम अगले मरहले में ग्रामर सीखते हैं, तो गौर से सुने। आपने इस कहानी में मुख्तलिफ लोगों का जिक्र सुना, जैसे लैला। इसी तरह आपने कुछ चीज़ों का भी जिक्र सुना, जैसे चूड़ियाँ, फल, सब्जियाँ, रिक्शा, तांगा और खुश्क मेवाजात। साथ ही साथ आपने सुना कि कहानी में कुछ जगहों का भी जिक्र हुआ है, जैसा कि घर, बाजार, साहिल समंदर और पार्क। क्या आप जानते हैं कि इन तमाम लोगों, चीज़ों और जगहों के नामों को ग्रामर की रूह से क्या कहा जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। ग्रामर की रूह से तमाम चीज़ों, लोगों और जगहों के नामों को इस्म कहा जाता है। अब मैं आपको मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए इस्म के बारे में तफसीलन समझाती हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज के इस सबक में मैं आपको इस्म के बारे में बताऊंगी। आइए सबसे पहले जानें कि इस्म किसे कहते हैं या फिर इस्म होता क्या है। प्यारे बच्चों, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनें कि इस्म किसे कहा जाता है। मैंने इस्म को समझाने के लिए आपके लिए एक टूल तैयार किया है। आइए इसकी मदद से इस्म के बारे में सीखें। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। फिर से दोहराते हैं, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। तो अब मुझे बताएं कि इस्म किसे कहते हैं। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। आइए अब मुख्तलिफ मिसालों से इस्म के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। प्यारे बच्चों, किसी भी शख्स के नाम को इस्म कहा जाता है। जैसा कि मैं एक शख्स हूँ और मेरा एक नाम है। मेरा नाम सोनिया हफीज़ है, तो सोनिया हफीज़ मेरा इस्म है। जिस तरह आपके मुख्तलिफ नाम हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ शख्सियात हैं, तो हर शख्स के नाम को इस्म कहा जाता है। इसी तरह आप टेबल पर मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम हैं, जैसा कि ये एक जार है, ये एक बांसुरी है, ये एक कलम है और ये एक मार्कर है। इन तमाम चीज़ों के ये नाम हैं, जार, बांसुरी, कलम
और मार्कर वगैरह। इसी तरह आपके इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ जगहों के भी नाम होते हैं, जैसा कि हमारे स्कूल का भी एक नाम है, जैसा कि हमारे शहर का भी एक नाम है। मिसाल के तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा वगैरह। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसम की समझ आ गई है, लेकिन इसको मज़ीद दोहराने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बोर्ड है, इस पर मैंने इस सरगर्मी का खाका खींचा है। इस पर आपको 1, 2, 3, 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहला कॉलम है हरूफ का, दूसरा कॉलम है नाम, तीसरा कॉलम है चीज़ का और चौथा कॉलम है जगह का। मिसाल के तौर पर एक किया गया है। हमें पहला हर्फ दिया गया बे। बे से शुरू होने वाले किसी के नाम, फिर किसी चीज़ के नाम और किसी जगह के नाम को हमें यहाँ लिखना था। जैसा कि नाम के कॉलम में आप देख सकते हैं, बे से बानो या बाजी। अब देखते हैं बे से किसी चीज़ का नाम। यहाँ लिखा गया है बे से बस्ता या फिर कोई और नाम। तीसरे कॉलम में है बे से शुरू होने वाली किसी भी जगह का नाम, यानी बहावलपुर या फिर कोई और नाम। उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी या सरगर्मी को अपनी इन कोरोना की छुट्टियों में घरों में दोहराएंगे और तमाम हरूफ तहज्जी के हरूफ से मुख्तलिफ किस्म के इसम तलाश कर कर लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा और इसम के बारे में आपकी मालूमात में बहुत हद तक इजाफा हुआ होगा। मैं आपके लिए इदारा तालीम व आगाही की तरफ से मज़ीद वीडियोस बनाती रहूँगी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में सेफ रहेंगे और हाथ बाकायदगी से 20 सेकंड तक धोते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़। अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज पर राब्ता करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ